Hello children, how are you? I hope you all are reading English well and you've started reading new storybooks as well. Very good. Do continue doing that, children. Now we are going to look at our next chapter. This chapter is about the master artist. What is this chapter about? I'm too curious to know. Now let's read the prologue. Creative and talented people that can contribute in different ways are everywhere, but sometimes the opportunity to develop and explore the talent is limited or restricted. Consequently, we all, the entire world, miss out on the creativity and innovations that could enrich our world and help us move forward. Initially, parents of Benjamin did not realize his immense potential as a painter. But later, the talent of their son became an honor for them. ओके बच्चों, आपने सुना होगा कि यहाँ पे जब हम जो आर्टिस्ट होते हैं जैसे पेंटर हो गए या कोई फोटोग्राफर हो गए, ये सारे क्या होते हैं? आर्टिस्ट होते हैं. क्रिएटिव पीपल होते हैं, सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, दे आर ऑल आर्टिस्ट. ओके, तो पहले क्या होता था, जो आर्टिस्ट थे उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था, उनका टैलेंट सब लोग रिकग्नाइज नहीं करते थे. धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे नए नए आर्टिस्ट आने लगे, उनके टैलेंट्स को हम लोग देखने लगे. ऐसे एक किस्सा है बेंजामिन के बारे में. उसके पेरेंट्स को उसका टैलेंट पहले पता नहीं था, बट जब उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही अच्छा पेंटर है, तब उन्होंने उसके टैलेंट को परखा, उसको जांचा, और उसके बाद उनको ये समझ में आया कि उनके बच्चे के टैलेंट की वजह से अब वो काफ़ी बड़ा पेंटर है और सब लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं. Okay, let's warm up. Benjamin West became a great painter as he was gifted with painting skills. What is the wonderful gift that you've got? We all are talented. हमारे सबके पास कोई ना कोई टैलेंट है. कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छे पेंटिंग्स बनाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है. आपको सोचना है कि आपके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो दूसरों के पास नहीं है. आपके पास एक यूनिक टैलेंट है. So recognize that talent and do check with your friends also what special talent they have. Okay? Now let's read this story about Benjamin West. A long time ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. Benjamin loved pictures, but he had never seen any pictures except a few small ones in a book. His father and mother did not think it was right to spend money for such things. They thought the pictures might take his mind away from useful things. Okay? तो जब बेंजामिन वेस्ट जो है was born in America, जब वो छोटे थे उनको पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे, बट उनके पापा मम्मी को लगता था कि पिक्चर्स जैसे यूजलेस चीज़ों पे क्यों पैसा वेस्ट करना है, इसके लिए वो उसको पिक्चर्स नहीं ला के देते थे. ओके, उनको लगता था कि पिक्चर्स की वजह से इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. क्योंकि कभी कभी आपके पेरेंट्स को भी ऐसे लगता होगा, बट येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग यू मस्ट टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट एंड शो योर पोटेंशियल्स टू देम एज वेल. ओके, सो वन डे Benjamin's mother had to go out. She told Benjamin to stay in the house and take care of his baby sister until she came back. He was glad to do this because he loved the baby. She was asleep in her crib. For a while, he sat very still. He did not want to make any noise and wake her. He could hear the clock ticking. He heard the birds singing. Soon, he began to feel a little lonely. Okay? बेंजामिन की मम्मी एक दिन कहते हैं कि मुझे ना कहीं बाहर जाना है, तो क्या तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखोगे? तो बेंजामिन हैप्पीली अग्रीड, क्योंकि उनको अपनी बहन बहुत पसंद है. तो वो बोले कि ठीक है. फिर उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की. फिर उन्होंने देखा कि घड़ी की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, इतनी शांति थी, बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी. अब थोड़ी देर में वो बोर फील होने लगे. वो थे तो छोटे ही ना, तो ऐसे ही होता है जब हम भी अकेले होते, थोड़ी देर के बाद हम भी बोर होने लगते हैं, लोनली फील होने लगता है. तो अचानक से उन्होंने देखा कि अ फ्लाई सैट ऑन द बेबीज चीक एंड ही ब्रश्ड इट अवे. Then he thought what a pretty picture he could make of his sister's lovely face and her little hands. He had no paper, but he found a piece of cardboard. He had no pencil, but he found a piece of black charcoal. How pretty the baby was! He began to draw. The baby smiled but did not wake up.
The picture grew as the charcoal touched the cardboard. Here was her round head covered with pretty curls. Here was her mouth, and here were her small ears. Here were her wonderful hands. Okay? तो अचानक उन्होंने देखा कि उनकी जो सिस्टर है उसके गाल पे एक मक्खी आके बैठती है, तो वो उसको उड़ा देते हैं। फिर वो देखते हैं अपनी सिस्टर को, तो सोचते हैं क्यों ना मैं इसकी एक पिक्चर बना दूँ, एक पेंटिंग बना दूँ उसकी। बट फिर देखते तो उनके पास पेपर नहीं था, तो उनको एक कार्डबोर्ड का पीस मिलता है। अब उनके पास पेंसिल भी नहीं थी, उनको कोयला मिलता है। ओके, सो ही स्टार्ट्स ड्रॉइंग द बेबी विद द हेल्प ऑफ दैट चारकोल पीस ऑन द कार्डबोर्ड। और जैसे जैसे वो बनाते हैं वैसे वैसे एक राउंड फेस बनाते हैं, उस जिसमें उनके बालों से कर्ल्स निकल रहे हैं। फिर उनके उसका माउथ बनाते हैं, उसकी प्यारी सी आंखें बनाते हैं, छोटे छोटे कान बनाते हैं और उसके बहुत प्यारे प्यारे हाथ भी बना देते हैं। तो ऐसे वो अपनी सिस्टर का फ़ोटो बनाते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी हाउ मच यू फॉलोड बाय ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस। ओके, व्हाट डिड द मदर आस्क बेंजामिन टू डू अंटिल शी केम बैक, एंड व्हाट डिड बेंजामिन ड्रॉ ऑन द कार्डबोर्ड। ओके, काफ़ी आसान सवाल है। आई एम श्योर इफ़ यू रीड इट दिस चैप्टर जहाँ तक हम पढ़ा है तो यू विल ईजिली आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, now it was very quiet in the house. He was so busy drawing that he did not think of anything else. He did not even hear his mother's footsteps as she came into the room. "Oh, Benjamin, what have you been doing?" she cried. The boy sprang up, alarmed. "It's only a picture of the baby, mother," he said. The mother was so overjoyed that she hugged him and kissed him. Then suddenly she began to worry. Had Benjamin done the right thing? तो घर में एकदम सन्नाटा सा होता है और बेंजामिन वो पिक्चर बनाने में इतना खो जाता है कि उसको अपने माँ के फुटस्टेप्स भी नहीं सुनाई देते। और अचानक से उसकी मम्मी आ जाती है, उसको पूछते क्या कर रहे हो, तो वो डर जाता है और बोलता है मम्मी मैं तो सिर्फ बेबी की तस्वीर बना रहा था। तो जब वो मम्मी देखती है, शी इज़ सो हैप्पी टू सी दैट पिक्चर कि वो अपने उन्होंने बेंजामिन को अपने पास दिया और उसको हक करके किस कर दिया। बट उनको फिर चिंता होने लगी। बेंजामिन, हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर, शी आस्क्ड. I didn't learn it, he answered. I just did it. I couldn't help but do it. When Benjamin's father came home, his mother showed him the picture. It looks like her, doesn't it? She asked. But is it very wrong for Benjamin to do such a thing? Benjamin's father did not answer. Put it away, he said. Several weeks later, the priest of their church called on them. Benjamin's parents showed him the picture. They told him how Benjamin was always trying to draw something. Should this stop him? The priest looked at the picture for a long time. Then he called Benjamin to him and put his hands on his head. The child has a wonderful gift, he said. Let us hope that Benjamin will grow up to be an honor to our country. And the words of the priest came true. Many years later, Benjamin West became a great painter and his pictures made him very famous. तो जो मम्मी को थोड़ी चिंता होने लगती तो वो पापा से पूछती है कि ये देखो बेंजामिन ने क्या बनाया है, क्या ये सही चीज़ है, क्या हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए। तो उस टाइम पे तो पापा कुछ कहते नहीं। अब थोड़े हफ्ते बीत जाते हैं, तभी चर्च से फादर आते हैं, प्रीस्ट आते हैं। तो बेंजामिन के पापा मम्मी जो है उनको प्रीस्ट को वो तस्वीर दिखाते जो बेंजामिन ने ड्रॉ की थी। तो और उनको पूछते क्या हमें उसके रोकना चाहिए कि ऐसी चीज़ें मत बनाना। बट तो प्रीस्ट कहते कि यार ये बच्चा जो है आपका वो तो काफ़ी टैलेंटेड है, उसके पास तो गॉड का गिफ्ट है, आपको उसको बढ़ावा देना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। और सच में ऐसे ही हुआ, जो प्रीस्ट की बात थी वो सच हो गई। बेंजामिन वेस्ट एक बहुत ही खूब पेंटर बने और उनके पेंटिंग्स इतने फेमस हो गए कि सच में उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। सो देखा बच्चों, हाउ बेंजामिन वेस्ट बॉट एन ऑनर टू हिज कंट्री विथ हिज टैलेंट।
वैसे ही आपके अंदर भी कोई टैलेंट होगा तो उसको अंदर दबा के मत रखना. टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट. शोकेस योर टैलेंट. You never know, you might also bring an honor to your country. Okay, now reread this chapter very well, learn the important words, and don't forget to do the difficult words and also do the back exercises.